یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ رنگین دنیا تمہیں خوبصورت دکھتی تو ہے لیکن ہے نہیں، بڑی خطرناک دنیا ہے، بڑی خوفناک دنیا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اس نے غم بھی دیکھا، دکھ بھی دیکھا، برے حالات بھی دیکھے، برا وقت بھی دیکھا، رنجوں میں بھی رہا، دکھ تکلیفوں میں بھی رہا۔ خوشحالی کی زندگی یہاں نہیں ملے گی، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ کو راضی کر کر ملے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کو سکون ہو، اطمینان ہو، اس کے دل کو راحت ہو۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے اس کے دل کو ٹھنڈک ہو، اطمینان ہو، راحت ہو، سکون ہو، اسے خوشی ہو۔ ہاں وہ یہاں نہیں ملے گی، وہ کہاں ملے گی؟ پھر کہاں ملے گی؟ اسے کہاں تلاش کریں؟ سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرا، اپنے رب کے حکموں پر زندگی بتائی۔ ارے میرے دوستو، وہ اللہ کہہ رہا ہے، ہاں اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے توبائیں کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ وہ اللہ تمہیں اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دے گا، اور وہ جنت ایسی ہوگی نہ وہاں غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ تمہیں بڑھاپا آئے گا، نہ تمہاری جوانی کو نقصان ہوگا، نہ تمہاری طاقت کم ہوگی، نہ تمہاری عمریں ڈھلیں گی۔ وہ جنت ہی ہے جہاں ہمیشہ کے سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے۔ ہاں وہ تمہیں یہاں دنیا میں نہیں ملے گی، تم دنیا میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ میرے دوستو، مختصر سی زندگی ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ شخص کامیاب ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں جس نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ اسے کن چیزوں سے دور کرے گا؟ غموں سے، رنجوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بہت چیزوں سے اللہ اسے دور کر دے گا، اور ایک سکون بھری، راحت بھری، اطمینان والی زندگی، ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ سنو میرے دوستو، وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا، بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدرداں ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو یہ سکون بھری، راحت بھری، بنا تھکاوٹ والی زندگی عطا کرے گا، جس میں موت کا غم نہیں، بیماریوں کی فکر نہیں، ہاری بیماری کی فکر نہیں۔ ارے وہاں تو ہمیشہ لامحدود رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ خوشیوں سے بھری زندگی ہے۔ وہاں نہ بڑھاپا آئے گا، نہ تکلیف آئے گی، نہ ہاتھ پیروں میں درد ہوگا، نہ تھکن چڑھے گی، وہاں نہ بدصورتی ہوگی۔ ارے وہ سکون بھری زندگی کے لیے کچھ کر لو میرے دوستو، کچھ کر لو اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس ہمیشہ لامحدود زندگی کے لیے۔ یہ مختصر سی زندگی تباہ برباد نہ کرو، ہوشیار عقل بند بن جاؤ مسلمانوں، میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگیوں پہ غور کرو، فکر کرو، کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ارے اپنے رب کو بھی ناراض کر کر زندگی بتائی تو کیا بتائی میرے بھائی؟ کیوں نادان بن کر زندگی گزار رہے ہو؟ اپنے رب کے ارشاد نہیں سنتے ہو؟ تمہارا رب تمہیں کیا کیا دے رہا ہے اس دنیا میں؟ یہ غموں سے بھری دنیا ہے،
तकलीफ़ों से भरी दुनिया है। अरे यहाँ तो परेशानियाँ ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ तो काम की टेंशन, बीवी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, अपनी टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, दोस्तों की टेंशन, दिन रात की टेंशन। यहाँ तो गम ही ख़त्म नहीं होते, दुख तकलीफ़ ही ख़त्म नहीं होती, परेशानियों से ही नहीं निकलते। अरे यहाँ कहाँ आराम ढूंढते हो, कहाँ सुकून ढूंढते हो, कहाँ इत्मीनान ढूंढते हो, कहाँ राहत ढूंढते हो। वो जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। वो तुम्हें अल्लाह ही अता करेगा, जन्नत में मिलेंगी। ये सब चीज़ें तुम्हें जन्नत में मिलेंगी। हाँ, हर बड़ी बीमारी से छुटकारा वहाँ है, हर बड़ी हाजत से, हर बड़ी बुराई से, हर बड़ी थकावट से, हर बड़े गम से, हर बड़े दुख से वहाँ छुटकारा है। वहाँ ये तकलीफ़ें नहीं हैं, ये तकलीफ़ें नहीं हैं। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों। अरे देखो ना, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे बाप दादा भी तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे सामने ना जाने कितने चले गए। किसी के माँ बाप छोड़कर चले गए, किसी के ज़िंदा हैं, लेकिन देखो तो सही तुम्हारे सामने कितने तुम्हें छोड़कर चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अरे इस पर थोड़ा गौर तो कर लो, तुम्हें भी एक दिन इसको छोड़कर जाना है, तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, चंद लम्हों की ज़िंदगी है, इसका वक्त का कोई पता नहीं है। जो इस दुनिया में आया है उसको मौत ने नहीं छोड़ा है, मौत ने नहीं छोड़ा है। अरे मेरे दोस्तों, नादान क्यों बनते हो, क्यों बनते हो नादान? अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो उस जन्नत के लिए, हाँ, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली है, हमेशा की खूबसूरती मिलने वाली है, हमेशा के लिए परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। वो कौन देगा? वो अल्लाह देगा, वो अल्लाह देगा, वो अल्लाह देगा। वो अल्लाह जब देगा मेरे दोस्तों, जब उसे अपना बनाओगे, जब उसे राज़ी करोगे, अरे उससे बात तो करो, उससे मिलो तो सही। हम कितने बदनसीब हैं कि अपने अल्लाह से बात ही नहीं करते, अपने अल्लाह के हुक्म को नहीं जानते, उसके हुक्मों को ही नहीं पहचानते। अरे मेरे दोस्तों, क्यों नादान बन रहे हो? इतनी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, अपने रब को भुलाकर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हो। कहाँ से तुम्हारे दिलों को सुकून आएगा? कहाँ से तुम्हें राहतें मिलेंगी? कहाँ से तुम्हें सुकून मिलेंगे? याद रखो, जिस तरीके से तुम दुनिया में वक्त गुजार रहे हो, ये दुख तकलीफ़ परेशानियों में मुब्तला हो, ये बुरे हालातों ने तुम्हें घेर रखा है, ये कुछ भी गम नहीं है, ये कुछ भी परेशानियां नहीं हैं, ये कुछ भी तकलीफ़ें नहीं हैं। अगर अपने अल्लाह को नाराज़ कर कर ऐसे ही मर गए, ऐसे ही चले गए, ना जन्नत मिलेगी, ना रब मिलेगा, ना रब की मोहब्बत मिलेगी। वहाँ एक बहुत बड़े सख्त घड़ी से, एक बहुत बड़े सख्त मंज़र से, एक बहुत बड़े सख्त अल्लाह के अज़ाब से गुज़रना पड़ेगा, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये हमारे बस की बात नहीं हो उसे बर्दाश्त करना। अपने अल्लाह को क्यों भुलाकर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हो? वो लामहदूद ज़िंदगी है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए उसे बर्बाद ना करो, बर्बाद ना करो। अरे होशियार बनो, अक्लमंद बनो। सब तुम्हें छोड़कर चले गए, अरे तुम भी छोड़ दोगे इस दुनिया को। अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। सुनो अल्लाह ताला का इरशाद, अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, पुरअमन मकान में होंगे। यानी सुनो, यानी बागों और नहरों में वे लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह से डरने वाले। हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अपने अल्लाह को मालिक मानकर उसके लिए गलत कामों को छोड़ने वाले। जिसने अपने अल्लाह से डरकर गलत कामों को छोड़ा, इस गफलत भरी ज़िंदगी को छोड़कर अपने अल्लाह की तरफ आया, अपने अल्लाह से मोहब्बत करी। हाँ, जिसने अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरा करा, अपने अल्लाह की बातों को मानी, अपने अल्लाह से डरता रहा हर उस बुरे काम को करने से जो अल्लाह को नाराज़ करने का हो। तो अल्लाह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, यानी बागों और नहरों में वे लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें
इसी तरह होंगी और हम उनका निकाह गोरी और बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। ये कौन कह रहा है? बेशक अल्लाह ताला का इरशाद है, हम उनका निकाह गोरी और बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा रहे होंगे। वहाँ सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी, दोबारा मौत का जायका भी नहीं चखेंगे, दोबारा मौत का जायका भी नहीं चखेंगे। ये कौन लोग होंगे मेरे भाइयों? ये अल्लाह से डरने वाले। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। जब हमारी मौत आए तो अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में हो। मेरे दोस्तों देखो तो सही, अल्लाह क्या कह रहा है? जन्नत में मौत नहीं है। जो दुनिया में उन्हें मौत आ गई, दोबारा मौत का जायका भी नहीं चखेंगे, दोबारा मौत नहीं आएगी। वो लामहदूद ज़िंदगी है और अल्लाह ताला उन डरने वालों को दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेंगे। दोज़ख के अज़ाब से अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। बड़ा ख़तरनाक, बड़ा खौफनाक, बड़ा हौलनाक, बड़ा हैबतनाक, बड़ा दर्द भरा अज़ाब, बड़ा सख्त है मेरे दोस्तों, बड़ा सख्त है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। अरे ये हमेशा के लिए नहीं है। इसमें अपने वक्त को ज़ाया ना करो, अपने रब को नाराज़ ना करो। मेरे दोस्तों ये सब कुछ उनको आपके रब के फजल से मिला। बड़ी कामयाबी यही है, यही है बड़ी कामयाबी मेरे दोस्तों, यही बड़ी कामयाबी है। जिसने अपने अल्लाह को राज़ी करा, राज़ी कर कर मर गया और अल्लाह उससे राज़ी होगा। अल्लाह की फिर तुम देखोगे, ताकत देखोगे, क़ुव्वत देखोगे। अल्लाह कितनी ताकत वाला है, कितनी बादशाहत वाला है, कितनी बड़ी जन्नत देने वाला है और हर चीज़ से कैसे पाक करने वाला है। वहाँ कोई गम ना होगा, कोई तकलीफ़ ना होगी, कोई परेशानी ना होगी, कोई हाजत ना होगी। इंसान को किसी भी तरीके की वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ इंसान चाहता है कि उसकी आँखें हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रहें जैसा अल्लाह ने बनाई हैं, जैसे वो परफेक्टली देखता है, बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल क्लासिक देखता है। वो चाहता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई कमी नहीं हो। लेकिन मेरे दोस्तों ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ सबको ख़त्म होना है, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ तबाह होना है। वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो अंधा हो जाता है। हाँ, वो ना चाहते हुए भी बूढ़ा हो जाता है। उसकी ये काली जवानी सफ़ेदी में बदल जाती है। उसके ना चाहते हुए भी ये यंग शरीर, चुस्त शरीर, ताकत भर शरीर, यह आज 33 साल का जवान था और आज 60 साल का बूढ़ा हो गया है। ये नहीं चाहता था कि ये बूढ़ा हो, ये फिर भी बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये दुनिया है, ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ हर चीज़ को ख़त्म होना है। ये हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए तो वही है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए तैयार कर रखी है। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, यहाँ हर चीज़ को ख़त्म होना है। इंसान को ना चाहते हुए भी बुढ़ापा भी आता है, दुख भी आता है, तकलीफ़ भी आती है, टांगों में दर्द भी होते हैं, हाथों में दर्द भी होते हैं, सिरों में दर्द भी होते हैं। ये सब बुढ़ापे की वजह से सब होता है। इंसान ये नहीं चाहता कि इसके साथ ये हाजतें पेश आएँ, लेकिन ये फिर भी आती हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। ये दुनिया चंद लम्हा की दुनिया है, ये दुनिया कुछ वक्त की दुनिया है। जब अल्लाह चाहेगा इसको ख़त्म फरमा देगा और तुम देखोगे अल्लाह के फरमाबरदारों को अल्लाह उन्हें कैसे अपने अज़ाब से बचाएगा और इस दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अता करेगा, जो इस दुनिया से बहुत खूबसूरत होगी। इस दुनिया से जन्नत कितनी खूबसूरत होगी और इस दुनिया से बेहतर होगी। इंसान यहाँ मर जाता है, वहाँ मौत नहीं है, वहाँ मौत का मज़ा दोबारा नहीं चखेगा। इंसान ये बूढ़ा हो जाता है, वहाँ बुढ़ापा कभी नहीं देखेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इंसान यहाँ परेशान रहता है, बीमारियों में मुबतला हो जाता है, ना चाहते हुए भी
जो भी हो जाता है वहाँ ये इंसान नहीं देखेगा, बीमारियाँ नहीं देखेगा, थकन नहीं देखेगा, बुरे वक्त में नहीं पड़ेगा, वहाँ बुरा वक्त ही नहीं आएगा, क्योंकि वो लामहदूद है, हमेशा के लिए है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये दुनिया सबको ख़त्म कर देगी और एक दिन खुद भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों इस वक्त को हाँ मामूली ना समझो। वो अल्लाह इस वक्त का भी हिसाब लेगा जो हमने ये अल्लाह को बुलाकर गुजार दिया, अल्लाह की ना मानकर गुजार दिया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हुए गुजार दिया। मेरे दोस्तों, हम सबको भी मौत आनी है, उससे पहले तौबा कर लो कि हम तौबा करने के लायक ही ना हो। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे दोस्तों, हमेशा की ज़िंदगी जन्नत में है। अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमारे दिलों में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए और हम सब को दोनों जहानों में, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और बुलंदियाँ नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से तौबा कर लो, अपने अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी बिताओ। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।